So, good afternoon, everyone. My name is Himanshu Modi. Am I audible? Yes. Good. So, my name is Himanshu Modi, and I'm the hello, yeah, and I'm the technical director for the company. And our company is a Secura, which is a part of the Senda Group. And Senda Group is 14-year-old company. It's a UK-based company, and as a UK-based company, but all the company work is going on in the India only. Okay. So we have a different units in our organization. So we are running a resort business. So we have a resorts in Goa, Dudhsagar Spa Resort and Baywatch Resort. We also have a Your Wellness magazine. Since 2011, we have started our technology company. We have started with the product Engage, and then when we have started at that time, our focus is to just the privacy and control over the data. That we have started with the chat application, and then we are also fall into the attack by our internal employee, that our internal employee theft our product, I mean some data, and on that actually whatever has happened, but based on that we have come up with this product Secura. Okay, so in Secura, uh, before I start the Secura product and the Secura Guard, I just want to ask everyone a question, that everybody's running a business and everybody has a employees and they have a data of yours. They are working on your data, right, sir? Okay, so do you think your data is in your control, everybody? Can you share your comments on this? Can you share me your comments on this? Yes, sometime data is our control, but sometime not. Basically, not 100% our data is in your control, right? Right. So, anybody else anything want to say? Anybody think that your data is in your 100% control? Himanshu sir, your voice is not clear. Now it's clear. A little better. Sir, your voice is little low. It's Yeah, Okay. it's reflecting echo sound. Okay, now it's fine. Yeah, much better. Okay, thank you. Okay, I changed my place actually. That's the reason. Okay, so our mission is to put you back in control of your data. This is our product. So whatever the data in your organization, your people are generating, or you share the data with them, it's in not in their control, it's in your control. So why I'm saying now we are in control, because first let me give you some information about the digital world so you can understand. So in the digital world, currently we are living in the digital world. So and whatever the data we generate digitally, it's digital, it's a virtual, right? So like in physical world, if you have any data, like I have a invoice, printed invoice data, I have a customer information data printed, so I have a physical copy with me. And suppose this physical copy somebody stolen, I know, because that is I can't see that physical copy, so I know that somebody stolen or something is happened with my data. But in digital world, the data lies in front of you in your computer, and you see the data, but you don't know how many copies are generated of your data. And that is the problem with the digital world, and that's the problem. Okay. Now in the Secura Guard, what we provide. Okay, so we are now focusing here on the Secura Guard only, because our product is vast, but we are right now focusing on the Secura Guard, which is one of the product of Secura, where a purpose of Secura Guard is simple: to protect the tally data. Okay, so what we provide in Secura Guard? So we provide a thief proof. Thief proof means anybody from your organization, your staff, they want to thief your data, they can't. Even the hackers, outsiders also. Okay, so your data won't get theft in our organ if you are using our solution. We also provide you safeguard from the mistakes and disasters. So why we provide a safeguard from mistakes and disaster means, suppose by mistake your data guide might get deleted. You might get deleted. You done the delete button, press the delete button, and your data might get deleted. Accidental loss might happen with your device. Means your device might get corrupted. Hard disk might get corrupted.
or your device might get stolen. Like for example, I'm using in my laptop and my laptop I misplaced or stolen or something has happened with my laptop. So I don't have to worry because my data is on cloud. We also provide the ransomware security also. So for example, if your computer is attacked by ransomware by mistake, so you don't have to worry about your Tally data because your data is secure. We also provide you secret and invisible mode. So for example, you want to hide your data, Tally data, which is nobody will be able to view the Tally data. That invisible mode, secret mode we provide. We provide by secret password. So what in our application, we provide you private area where you can log in with your private area password, and that when they log in with your private area password, in your private area, you can secure your data. So that provision we also provide. We also provide you intruder proof, means anybody trying to log in with in your system and open the Tally, you will get alert. Okay. If they entered the wrong password, you will get alert. You also can burn any data. Means for example, your device is stolen. You think that, okay, my device might be somebody's using and you want to burn the data, means data should be deleted. You can click one click and you can delete all the data from that computer. Okay, so that also we provide feature. We also provide spying proof, means in our application, we block screen sharing, we block screen recording, we block print screen, everything we block. So suppose in your application, in your computer, you have a spying tools which records the current activity. You don't have to worry because that activity will not be get recorded because screen sharing, screen recording is blocked. Okay. So this is all the features we provide in Secura. So our benefits we provide. Anybody wants to comment on this? You want to share anything based on these features? Anything is clicked or anything you want to say? Anybody? Mr. Ajay? Yeah, No, Mr. sir. Nitesh. Yeah, Yeah, Mr. no, Nitesh. no. Till now, no. Okay, thank you. Mr. Naveen, Mr. Suresh, you want to say? Naveen, you can chat here in the chat box. Mr. Suresh, you there? Yes, Roshan. Rohan, sorry, my mistake. Rohan? Yes, hello. Yes, sir. You want to say Hello, anything? hello. Yes, sir, I can hear you. यस यस मैं ये पूछना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर कुछ हैक होता है तो देन मैं देयर आपको इज देयर बताता हूँ। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हैक अगर आप आपका पासवर्ड सबको शेयर कर दोगे तो हैक होने का चांसेस है इसमें से। ओके 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 वी अगर आर आप कंटिन्यूअसली चेंजिंग देन नो नो प्रॉब्लम, देन नो प्रॉब्लम। ओके 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 थैंक यू Thank you. Okay, so I will now showcase you the product. Okay. So just hold on, let me share my screen. Everybody can see my screen? Everybody can see my screen? Yes, sir. Yes, sir. We can. Okay, good. Let me start the Secura now. Can you see my screen in Secura? Yes, secure work is showing. No.
So when you enter your password, okay, so the Secura will open. And I need to show you because you might be seeing a blank screen or white screen. I will share you the screen. Before that, parallel, let me open the tally also. So in Secura, can you see the Secura screen, right? Everybody can see my Secura screen, or it's coming as a blank? Only computer desktop is there, sir. Oh, There is no okay, secure screen. okay, understood. Because I need to share you. Just hold on. Let me share my screen. Just एक सेकंड, मेरा इंटरनेट के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ. Now everybody can see the Secura now. No internet connection. Yes, sir. Hello, can you hear me? Can you? Can Hello. Yeah, everybody can hear me. yeah. Yes, sir. Okay. Okay, good. Okay. So in Secura, we provide cloud module, we provide instant messaging module, we provide Secura File Explorer, and we provide a settings module. So where you can secure your data. Now let me show you how this data is getting secured. So you can see I'm using the blank screen manager. Why I'm using the blank screen manager? Because my by default Secura screen sharing, screen recording is off. And to showcase your demo, I'm just allowing myself to share my screen. And this is the settings module where I can open the folder lock module with my admin password. As I told you that password is important. Okay. So when you see this admin module, when you open the folder lock module, you can see the folder lock module now. Okay. Everybody can see my folder lock module. So generally in your computer, Tally data is open like this. So you can see in my computer Tally data. This is my Tally data. Yeah. Hello. Yes, Yeah? please continue. So you can see this Tally data. Yeah. Okay, because I can't hear. Yeah. So I want to secure my Tally data. So what I can do here, I can go to the Tally. I can select the data folder which I want to secure. Okay, which the data folder I want to secure, I added that. And when I click on the three dots, I will enable and mark as a hidden now. When I mark as a hidden, automatically this data folder, you can see, is not visible. And you can see the error now. Windows can't find C drive data, C drive Tally ERP9/data. Check the spelling and try again. Okay. So when I go to the command prompt also,
in the DOS command prompt, you can see if I open the tally, if I open the data, you can see element not found. So what we are doing exactly, we are securing your data in such a way that in your operating system, no application will be able to see the data folder is exist in your computer at all. So you can see that. Okay. So लोगों को क्या लगेगा आपके कंप्यूटर में डेटा फोल्डर है ही नहीं. ये देखिए मैं डेटा लिख रहा हूँ, एरर आ रहा है कि कोई ऐसा चेक स्पेलिंग. हिमांशु सर, एक हाँ, क्वेश्चन बोलो. था आपको. हाँ. जैसे अभी आपने ये डेटा हाइड कर दिया, समझो मेरा मल्टीपल टैली चल रहा है, Yes. मल्टी यूजर, और अगर मैंने डेटा हाइड कर हाँ. दिया तो मेरे यूजर्स को वो Hide. डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा टैली में? ठीक है ना, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको. जी. हमने क्या किया है कि हमने प्रोग्राम का फीचर दिया है. ये प्रोग्राम में आपको जो एप्लीकेशन को अलाउ करना है कि वो डेटा देखे, वो एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हो पहले तो. अभी मैंने टैली एप्लीकेशन ऐड किया. अब ये टैली एप्लीकेशन का ऐड किया और ये टैली में स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने. ओके, ये टैली एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया. यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा आ रहा है कि डेटा नहीं है मेरे टैली एप्लीकेशन में, ऐसा आ रहा है. बराबर है. अभी मैं आपके सामने ये टैली एप्लीकेशन को जो मैंने ऐड किया टैली को, ये 3 डॉट में जाके मैं उसको एनेबल कर रहा हूँ, एक्सेस एनेबल कर रहा हूँ टैली एप्लीकेशन के लिए खाली. अभी देखिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को टैली एप्लीकेशन में डेटा दिखना चालू हो गया. अगर अभी भी मैं डेटा देख रहा हूँ टैली में, बट स्टिल आई एम अदर एप्लीकेशन, आई एम स्टिल एबल टू गेट सी द एरर विंडोज कांट फाइंड. यू कैन सी दिस. Even in the DOS command prompt, I'm getting the same error, element not found. Okay, so खाली टैली एप्लीकेशन में ही आप डेटा ओपन कर पा रहे हैं. ओके, सो इस तरह से हम आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सेस देते हैं जहाँ से आपका डेटा सिक्योर हो जाता है. अभी आप बोलोगे कि टैली में तो बैकअप सॉल्यूशन, तो बैकअप ले लिया तो मेरा डेटा चोरी हो जाएगा, राइट? सो हमने क्या किया है कि हमने हमारे एप्लीकेशन में एक फीचर दिया है, जहाँ पे हम आपको फीचर दिखाना चाहता हूँ मैं. जस्ट होल्ड ऑन. ये हमारा एप्लीकेशन का एडमिन मॉड्यूल है जो मैं ओपन करना चाहता हूँ. तो ये यूजर मॉड्यूल में मैं गया था, अभी एडमिन मॉड्यूल में जाता हूँ. तो ये हमारा एडमिन मॉड्यूल है जहाँ पे हमारा डेटा है. ओके, ये हमारा एडमिन मॉड्यूल है. तो एडमिन मॉड्यूल में हमने क्या किया है कि समझो कि कोई भी यूजर है, ये यूजर 1 है, तो मैंने यूजर 1 में गया, उसके 3 डॉट में गया, वहाँ पे मैं जाके मैं अल्ट्रा कंटेंट प्रोटेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे ऑटो फाइल एन्क्रिप्शन में जाऊँगा. यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर में जो भी फाइल क्रिएट कर रहा है, जैसे कि टैली की है, टैली बैकअप फाइल, टैली टीबी के और बीए के फाइल, जो भी अगर वो फाइल यहाँ से जनरेट करेगा, मैं ओके कर दिया मैंने, मतलब कि जो भी फाइल अगर बैकअप जैसे ही लेगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल सिक्योर हो जाएगी आपके कंप्यूटर में. सो बैकअप भी लेगा तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वो फाइल वो कॉपी नहीं कर पाएगा या उसको कहीं पे भी शेयर करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो फाइल अभी एनक्रिप्ट हो चुकी है. एनक्रिप्ट फाइल का मतलब क्या है, मैं वो दिखाता हूँ. जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में ये सब एनक्रिप्टेड फाइल पड़ी है, एक्सेल की फाइल पड़ी है, पीडीएफ की फाइल पड़ी है, ये सब फाइल पड़ी है मेरे कंप्यूटर में. तो ये होता क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ. मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और ये सिक्योर फाइल जैसे ही कोई लेके भी गया, चोरी करके भी गया मेरे कंप्यूटर में, मुझे टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो फाइल का जो डेटा है वो रीड ही नहीं कर पाएगा. अभी देखिए मैं एक्सेल फाइल में ओपन कर रहा हूँ सर्वर डैशबोर्ड करके. जैसे मैंने ओपन किया, आप देखिए फाइल का अंदर का डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड है. तो यू कैन सी दिस डेटा, एनक्रिप्टेड डेटा. ओके, सो नाउ यू कैन सी. सो कोई लेके भी जाएगा कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि सिक्योर के अंदर जो भी आप डेटा रहता है उसको हम सिक्योर कर देते हैं, एनक्रिप्ट करके रखते हैं. और अभी मैं आपको और एक फीचर दिखाता हूँ. ये तो टैली का हो गया. अभी टैली के अंदर मेरे कंप्यूटर में डेटा पड़ा है. ओके, अभी हमने क्या किया है कि प्रोग्राम फोल्डर में जाओगे, टैली के फोल्डर में हमने और एक ऑप्शन दिया है टैली मोड. भाई वेल आई एनेबल द टैली मोड. टैली मोड क्या करेगा? टैली मोड आपका क्या करेगा कि जो मेरे कंप्यूटर में जो भी डेटा पड़ा है, जो टैली का डेटा, उसको हम सिक्योर क्लाउड में अपलोड कर देंगे विथ एनक्रिप्टेड. आपके की से एनक्रिप्ट होगा. जैसे अभी हम देखते हैं, आप यूजर वाइज हम क्या करते हैं कि सिक्योर क्लाउड स्पेस देते हैं आपको सबको. तो सिक्योर क्लाउड 5 GB स्पेस देते हैं पर यूजर. अगर आप 5 यूजर लेते हो तो 25 GB मिलेगा. अभी आप देखिए इसमें कैसे होता है. इसके अंदर मैं गया डिवाइस वाइज, मेरे अभी यहाँ पे फोल्डर पड़े हैं जहाँ पे मेरा डेटा अपलोड होगा. देखेंगे 2 टाइप का फोल्डर बनता है. एक होता है कि नॉर्मल डेटा और प्राइवेट डेटा है.
तो अभी मैंने ये नॉर्मल डेटा मेरे यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है ये। ओके, सो मेरा जो भी डेटा है वो सिक्योर एक्सटेंशन में अपलोड हो गया, मतलब एनक्रिप्टेड है। अगर मुझे कोई भी डेटा का, इसमें फायदा क्या है कि जैसे मैं काम करूंगा, मुझे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बाहर से टैली अभी मुझे चालू नहीं करना है, मुझे टैली चालू करना है तो मुझे यहाँ पे जाके 9 डॉट में जाके टैली स्टार्ट करना है। व्हेन आई स्टार्ट द टैली फ्रॉम हियर, तो मेरे क्लाउड से डेटा डाउनलोड होगा, मैं काम करूंगा और मेरा डेटा काम तभी मेरा टैली चालू होगा। और जब भी मैंने टैली बंद करूंगा मेरा ऑटोमेटिक डेटा बैकअप हो जाएगा, क्लाउड पे चला जाएगा। एंड दैट्स हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क। सो मिस्टर सुरेश, आपका रिक्वायरमेंट था कि आपका डेटा क्लाउड में रहेगा। यस, इसमें डेटा क्लाउड में रहता है और जो यूजर जब भी काम करता है तभी में डेटा डाउनलोड होता है, वो भी सिक्योर तरीके से, और जैसे ही काम खत्म होता है ऑटोमेटिकली क्लाउड पे अपलोड होता है। एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क। और उसमें फायदा भी क्या है, अभी मैं आपको और एक फायदा दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये जो मेरे कंप्यूटर में डेटा पड़ा है, इसमें फायदा ये है कि अगर किसी को 2-3 दिन पहले का या किसी का भी डेटा देखना है तो आप वर्जन मैनेजर में जाके आप देख सकते हैं। जो जो फाइल में मैंने चेंज की होगी ना, वर्जन मैनेजर में जाके मैं देखूंगा तो मुझे वो डेटा मिलेगा। एक सेकंड, ओके, 3 डॉट में गया, वर्जन मैनेजर में जाऊंगा। अगर इसमें मैंने कोई चेंज किया होगा तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 चेंज किए, मेरे 2 वर्जन वाली फाइल्स पड़ी है। तो इस तरह से आपका वर्जन मैनेजर में आपका डेटा वर्जनिंग होता है। तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाने से पहले किसी ने डेटा को डिलीट कर दिया होगा, एंट्री डिलीट कर दिया होगा फाइल के अंदर, या किसी ने चलो जानबूझ के नहीं लेकिन बाय मिस्टेक 2-3 एंट्री डिलीट कर दी होगी, तो आपको और बाद में भूल गया, किसी ने अपडेट नहीं किया, और आप रोज काम कर रहे तो आपको पता चला कि उसने 5 तारीख को फाइल में कुछ चेंज किया था, उसको 4 तारीख का आपको बैकअप चाहिए, आपको 4 तारीख का बैकअप आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका वर्जनिंग भी मेंटेन होता है, सिक्योरिटी भी मेंटेन हो जाता है, कोई डेटा कॉपी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी मैं आपको वन मोर थिंग दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है कि आपको ये एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन दिया है प्राइवेट एरिया का। प्राइवेट एरिया का ऑप्शन दिया है। प्राइवेट एरिया क्या करता है, तो आपको प्राइवेट एरिया का आपका पासवर्ड डालना है। जैसे ही मैंने प्राइवेट एरिया का पासवर्ड डाला, एनेबल किया, अप्लाई किया, ओके, और मैं अभी वापस लॉगिन करूंगा। जैसे ही लॉगिन करूंगा आप देखिए प्राइवेट एरिया का सेक्शन यहाँ पे दिखना चालू हो गया। और मैं अभी वापस क्लाउड में जाता हूँ। अभी मैं क्लाउड में हूँ, मैं सिक्योरा में गया। अभी देखिए डिवाइस वाइज में गया, ये देखिए 2 फाइल दिख रही है जो पहले नहीं दिख रही थी, ये हिडन फाइल थी। तो जब भी आप कोई फाइल ऐसी है जो आपको सिक्योरिटी के साथ रखनी है, जो आपको सिक्योर रखनी है, भले नॉर्मल लोग काम कर रहे तो करने दो, लेकिन आपको चाहिए कि आपके पासवर्ड से ही वो फाइल ओपन हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं सर, जरा भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जरा भी नहीं? शायद आप माइक से दूर चले गए हैं। यस एग्जैक्टली। नहीं, मेरे माइक तो एकदम नजदीक है। सर हाँ, अभी थोड़ा सा आपका मतलब सही आया है, अभी थोड़ा सा सही आया है। ओके, अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट। ओके, तो अभी आपने देखा है कि आपका डेटा है, आप उसको क्लाउड में रख सकते हो, सिक्योरिटी के साथ रख सकते हो, किसी को वेरीफाई तो पूछ सकते हो। और सर अगर किसी को डेटा अगर शेयर करते हैं और अगर उसके पास आपका प्रोडक्ट नहीं है तो कैसे रहेगा ये? भी ऑप्शन है, देखिए 007 की कंपनी है, बराबर है, उसको मुझे किसी को शेयर करनी है। यहाँ पे 3 डॉट मैंने सेंड एज ईमेल किया मैंने, क्या ऑप्शन है ईमेल का? सर आवाज आपका नहीं आ रहा है बराबर। ईमेल का ऑप्शन नहीं सर, आपका आवाज वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मेरा आवाज
Can you hear me now? Yes, quite okay. ओके सो आप देखिए मेरे को जो भी फाइल भेजने में अकाउंट में जो भी करूंगा ना ईमेल करूंगा मेल में कर रहा हूँ जब भी मैं किसी को भी शेयर करूंगा वहां पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा सेंड विद एनक्रिप्शन सेंड विदाउट एनक्रिप्शन सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है नहीं। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ या ओके तो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि जब भी मैं कोई भी मेल करूंगा किसी को भी फाइल दिख रहा है आपको मेल किया मैंने और वहाँ करूंगा तभी पूछेगा सेंड विद एनक्रिप्शन Yes. Now अभी आप we देखेंगे जब भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड विद एनक्रिप्शन और सेंड विदाउट एनक्रिप्शन अगर आपको पता है कि सामने वाले के पास सिक्योर है तो विद एनक्रिप्शन भेज सकते हो और विदाउट एनक्रिप्शन भेजने तो विदाउट एनक्रिप्शन भेज सकते हो लेकिन आप किसी को विदाउट एनक्रिप्शन भेजोगे फाइल तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो फाइल जो भी भेजोगे वो ओपन कर पाएगा मतलब उसकी कॉपी फॉरवर्ड कुछ भी कर पाएगी फिर आपका कंट्रोल चला गया क्लियर हुआ आपको हेलो हाँ सर क्लियर है। ओके सो आपका वो भी डाउट क्लियर हो गया राइट अभी और किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ क्वेरीज है सर तो आप है ना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सो दैट वी कैन सी एंड वी कैन गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। नवीन सर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको अभी समझ में आया है या प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेरीज है यू वांट टू नो मोर तो आप है ना टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन। सुरेश सर आप ही पूछ सकते हैं। अभी और एक चीज दिखा देता हूं मैं अभी हम आपको रैंसम प्रोटेक्शन भी देते हैं हम कैसे देते हैं जैसे कि अभी मेरे कंप्यूटर में ये फोल्डर दिख रहे हैं सर हमारे यहाँ पे भी सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है वैसा सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है तो सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ ये सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर आ गया तो मैं सी ड्राइव में गया अभी मुझे समझो कि डेमो टेस्ट फोल्डर मुझे सिक्योर करना है तो मैं क्या करूंगा 3 डॉट में जाके उसको रैंसमवेयर प्रोटेक्शन मैंने ऑन कर दी जैसे ही मैंने ऑन कर दी ये देखिए अभी ये डेमो टेस्ट फोल्डर में गया मैं इसको हिडन कर दिया मैंने ये डेमो टेस्ट फोल्डर दिखेगा ही नहीं किसी को मेरे कंप्यूटर में लेकिन ओके तो हम आपको कोई भी फोल्डर सिक्योर करने के फीचर देते हैं अगर ये फोल्डर है किसी को दिखेगा ही नहीं वो कैसे उसको हैक कर पाएगा उसको कैसे कॉपी कर पाएगा ओके क्या है इसका अंडरस्टूड ओके रोहन कदम अंडरस्टूड नो प्रॉब्लम थैंक यू सो एनी क्वेश्चन एनी फीडबैक एनीथिंग प्लीज आस्क बिकॉज वी हैव डन विद द डेमो प्रोडक्ट डेमो सो आपको किसी को भी कोई क्वेश्चंस क्वेरी कुछ भी है पूछ सकते हैं हेलो नो अंडरस्टूड सर। हिमांशु भाई पता चल गया मोटा मोटी क्या है एंड डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सर मिस्टर रोहन यू हैव क्वेरी मिस्टर सुरेश रोहन जी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चंस मिस्टर नवीन you have any questions you can ask in the chat box okay so this is all about the product and thank you